आई डू नॉट गेट अप फ्रॉम माई चेयर एंड देख लो ये चल रहा होगा अभी भी, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। एंड दिस इज़ अ 60 मिनट्स आर ग्लास। एंड बस ऐसी कोई भी एक चीज़ मोटिवेशन के लेके बैठो, फ़ोन वगैरह को कर दो साइड वेन एवर यू आर स्टडिंग। ऑलराइट, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और टाइटल को तो देख के आप समझ ही गए होंगे दैट टुडे वी आर गोइंग टू डू exercise 7.3. But before doing exercise 7.3, I would just like to draw your attention towards some of the trigonometric identities that we have to follow during this integration. Class 11 तो आपने बहुत ध्यान से पढ़ी होगी, but I just wanted to recall some of the basic properties of trigonometry, just because in this exercise we will be needing all these trigonometric identities on a very first go. All right, so sabse pehle we are just going to revise it, and after that we will start with all the questions of this chapter. All right, the very first part that we have it on the screen is trigonometric identity first, and in this case I just wanted to use an arrow so that I would not like to create any kind of a confusion in front of you. So class, can you please tell me that what is sine 2x? I can simply say that sine 2x is equal to 2 sine x cos x. All right. I think this formula is very much easy in front of you. And what if I say that cos 2x क्या होता है? What is cos 2x? Cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. इसका एक और फॉर्मूला होता है that is very much prevalent, that is going to be 2 cos square x minus 1, and we have another formula that is going to be 1 minus 2 sin square x. Class, how we have got these formulas, इसकी explanation मैंने आपको एक मेन वीडियो के अंदर दी हुई है, जिसके अंदर से we have discussed all the indefinite के अंदर पूरे trigonometric identities and all the formulas which are going to be used in this entire chapter. You all can see the link there on the top. All right, so इसका explanation अगर आपको देखना होगा तो you can say see that. बट अगर मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल रफली बता दूं तो वी हैव अ आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। बस यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पुट करनी है एंड वी विल गेट दिस एंड वी विल गेट दिस। ऑल राइट, उसके बाद व्हाट इफ आई एम जस्ट गोइंग टू हैव tan 2x? tan 2x can be written down as 2 tan x divided by 1 minus tan square x. ऑल राइट क्लास, आगे एक और फॉर्मूला याद आएगा हमें, दैट इज साइन 3x. साइन 3x इज गोइंग टू बी 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. आफ्टर दैट सर साइन 3x भी बता दिया, तो कैन यू प्लीज टेल अस cos 3x? यस, डेफिनेटली. सो cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. ऑल राइट सर, ये वाली चीजें हो गई। एंड कैन यू प्लीज टेल अस सम मोर आइडेंटिटीज? tan 3x भी तो रह गया। सो वी हैव tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. ऑल राइट क्लास, एक छोटा सा तरीका है टू लर्न दिस। देखो, डायगनली में दोनों 3 3 हैं और दोनों माइनस में है। दिस इज पावर 1, दिस इज पावर 2, दिस इज पावर 3, और इसके अगर पावर आप 4 भी लगा दोगे इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। सो दिस इज अ वे बाय विच वी कैन जस्ट लर्न इट, and you can make your own way to learn all these kind of formulas, but these formulas are must and they have to be learned at any of cost. All right class, इसके बाद let's move to some of the formulas. For example, I just give you one example. आपके पास whenever in this chapter you will be getting some of the terms like कि integrate sin 3x and cos 4x with respect to dx. all right, तो इस वाले केसेस को वी कैन नॉट डायरेक्टली डू इट बिकॉज मैंने आपको प्रोडक्ट टूल वगैरह कुछ नहीं बताया, एंड वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई दीज प्रोडक्ट टूल्स ओवर हियर। तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, एंड हाउ टू ब्रेक दीज टर्म्स? तो लेट्स हैव अ लुक कि जब भी मेरे पास ऐसे सिस्टम्स आते हैं तो हाउ डू आई डू इट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 sin x cos y, 2 sin x cos y। तो इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ऑल राइट, ये चीज क्लियर है आपको? ऑल राइट, आफ्टर दैट वी हैव, अगर ये दोनों रिप्लेस हो जाए दैट इज गोइंग टू बी 2 cos x sin y which is going to be sin of x plus y minus sin of x minus y. Is this thing clear? बट व्हाट इफ अगर दोनों के दोनों ही cos हो जाएं? ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी 2 cos x
cos y, and it will eventually give us cos of x plus y plus cos of x minus y. ऑल राइट, वन मोर फॉर्मूला इज लेफ्ट जिसके अंदर आपसे आप नोटिस करते हो कि माइनस साइन हमेशा कॉमन ले लिया जाता है. एंड लेट्स हैव अ लुक दैट कि अगर दोनों के दोनों साइन हो जाए, दैट इज गोइंग टू बी 2 sin x sin y. The answer that we are going to have is minus of cos x plus y plus cos of x minus y. So these are the identities which are very much prevalent, और ये सारी identities हमको at any cost चाहिए ही चाहिए होगी. So before we begin with this chapter, class ये वाले identities at must याद कर लेना. And you can pause this video over here. You can just write these formulas on a piece of a paper, and जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, you can just paste it there. All right. Class, let's get started with exercise 7.3, and here we go with exercise 7.3. Exercise 7.3. All right. So question number one that we all are going to have it in front of us. Question number one. Question number one कह रहा है integrate sin square 2x plus 5 dx. सर आपने हमें नहीं बताया था कि साइन स्क्वायर 2x+5 क्या होता है. ऑल राइट, तो साइन स्क्वायर को तो नहीं कर पाऊंगा मैं. सर साइन एक्स होता तो आई वुड बी इजिली एबल टू सी दैट. बट अगर इसके साथ आई कुड जस्ट गिव यू टू अदर फॉर्मूलाज, दैट इज गोइंग टू बी कि मैं यहाँ पे आई जस्ट राइट ट्राई टू राइट इट विद ग्रीन कलर बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट वी कैन हैव. इज अगर मेरे पास होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो it can be written as 1 minus cos 2x upon 2. And what if we have cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2. कोई और फॉर्मूलेज याद रहे ना रहे, बट दीज फॉर्मूलेज मस्ट बी देयर इन योर माइंड. हमेशा और हमेशा आपके दिमाग में ये वाले फॉर्मूलेज रहने ही चाहिए. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर एंड ऑडिबल. एंड बच्चा प्लीज नोट दैट कि इफ यू आर स्टडिंग हेयर एंड देयर, आवाज खोल लो, कुछ भी करो, डू नॉट बी अशेम्ड इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड किसी के भी सामने. लेट देम नो दैट यू आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स इज सच इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आई कैन नॉट टेल यू दैट. ऑल राइट, लेकिन इसके लिए ना आपको एक पैशन चाहिए होगा जस्ट टू डू दैट, नॉट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट्स. ऑल राइट, तो हम फिर से मूव करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर वन. एंड क्वेश्चन नंबर वन मेरे पास यही कह रहा है कि क्लास अब मुझे जल्दी से बता दो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है. क्योंकि ये साइन स्क्वायर था तो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रेक दिस साइन स्क्वायर इनटू सम ऑफ द टर्म. तो मैं आपके लिए दो तीन बारी फॉर्मूला लिख देता हूँ सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रिकॉल. ठीक है, तो आई हैव साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. तो बस मुझे यही फॉर्मूला लगाना है एंड आई कैन हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी. इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2, और x तो मेरे पास ये था 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 dx. राइट नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट अप्लाइड द फॉर्मूलाज. मैंने अभी कुछ भी इंटीग्रेट नहीं किया, तो डू नॉट गेट वरीड कि सर ऐसा कैसे हो गया. This is going to give me integration of 1 upon 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos बेटा 2 को मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 फिर से बाहर, एंड इट इज गोइंग टू गिव अस dx. क्लास, डू यू ऑल नोटिस दैट कि ये वाला क्वेश्चन अगेन 7.1 का आ गया? यस और नो? 7.1 का पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला पार्ट इज गोइंग टू बी ऑफ 7.2 जिसके अंदर से सब्स्टिट्यूट करना था. एंड वी ऑल हैव इजीली लर्न कि सर सब्स्टिट्यूशन करना तो बहुत ज्यादा इजी था बिकॉज आपने हमें कितनी बार करा दिया है एंड वी आर जस्ट प्रो एट दैट. राइट, ऑल राइट, तो इसको कर लेते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स. दिस इज गोइंग टू बी साइन 4x प्लस 10, और 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है डिवाइडेड बाय 4 plus c. And if I just wanted to write it more clearly, the answer is going to be 1 upon 2x minus 1 upon 8 sine 4x plus 10 plus c. I think this thing is clear to each and every one of you who is studying via this platform. And I must say that कि बच्चा बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना. जस्ट पॉज द वीडियो फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन आने तक के लिए पॉज करो एंड डू द क्वेश्चंस और योरसेल्फ, एंड यू कैन जस्ट चेक द सोल्यूशन एट द लास्ट. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है एंड अगला क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रिलेटेड. अब आपको समझ आएगा कि सर आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये सारी चीजें क्यों करवा दी थी. ऑलराइट,
क्लास 11th क्लास में कोई फोकस नहीं करता मैथमेटिक्स में ज़्यादा, बट क्लास 12th आपको मजबूर कर देता है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तो आपको पढ़नी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन दे देता है, इंटीग्रेशन दे देता है, जिसके अंदर से वी आर हैविंग एप्लीकेशन ऑफ these trigonometric identities. All right, so question number 2 that we are going to have, it is going to say that integration of sine 3x cos 4x dx. All right, जब मेरे पास ये चीज आई तो डू यू ऑल रिमेम्बर दैट कि सर मेरे पास ये दोनों के दोनों थे, मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकता, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं इसको 1/2 और 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, दिस इज गोइंग टू बी साइन 3x cos 4x. डू यू ऑल रिमेम्बर दैट इन द स्टार्टिंग वी हैव डन सम ऑफ द फॉर्मूलाज, मैं आपको स्विच करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ऑल राइट, मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया सो दैट आई कैन गेट दिस, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप साइन को इधर ले जाओगे, कॉस को इधर ले जाओगे, तो इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू कैन डू एनी काइंड ऑफ स्टेप वॉट एवर यू लाइक। सो लेट्स हैव अ लुक कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन विच वे। ऑल राइट, तो क्लास फॉर योर रेफरेंस में अभी आपके बस लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास है 2 sin x cos y, तो ये क्या होता है, साइन x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ, not cos of, this is going to be sine of x minus y, and this is going to be the final part by which we are just going to solve it. बस यही वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दो एंड वी आर जस्ट रेडी टू गो विद दिस पार्ट। सो बच्चा आई विल जस्ट डू इट डायरेक्टली, ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रल ऑफ, बेटा साइन ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3x प्लस 4x plus sine of 3x minus 4x dx. I'll just solve it further down. This is going to give me sine 7x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ, क्योंकि साइन के आगे माइनस बाहर आ जाता है, यू नो दैट। दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ sin x and this is going to be dx. All right, ये वाला पार्ट, एंड जस्ट आप इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करो एंड यू आर हैविंग द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। एंड ये वाली पार्ट आपको पता होगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ एक्स, एंड आई नो दैट साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट इसलिए आया है यहाँ पे। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज, मैं इसको अलग अलग पार्ट पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, बट as soon as we are going to just progress it, so it is not very much possible for me to write down and break down this path again and again. तो आप डायरेक्टली इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाउ डू वी डू इट, दिस इज गोइंग टू बी 1/2, साइन का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास, क्या होता है बच्चा जल्दी से बता दो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7, और साइन का अगेन होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉस x अपॉन 1 plus c. All right, this thing is there, and I'm just going to write down the final answer. This is going to be cos 7x upon 14 plus cos x plus c. This is going to be the final answer in front of us. All right, and आप सबको पता है कि ये वाला पार्ट किस लिए हुआ है। अगर ये वाला पार्ट आपको नहीं पता है तो प्लीज move back to the previous exercise. We have done each and every question regarding this chapter. All right, again the question that we are going to have it in front of us is going to be question number 3, and ये question number 3 भी बहुत easy होने वाला है हमारे पास। This is going to be question number 3, and question number 3 is saying that integrate cos 2x cos 4x and cos 6x dx। अब क्लास मुझे एक चीज पता है कि इस अंदर cos cos cos, अगर इसमें से कोई भी दो cos ले लूं तो आई हैव द आइडेंटिटी वंस अगेन, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस with 1/2 and 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा, प्लीज टेल मी दैट। आई एम जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी cos 2x cos 4x cos 6x dx। इसके अंदर वी हैव एन आइडेंटिटी विच इज गोइंग टू बी यूज्ड एज, ये मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी 2 cos x cos y विच इज इक्वल टू, जल्दी से बता दो, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। अब क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक इज कि सर ये चीज तो ठीक है, बट इसमें से कौन सा वाला दो पेयर ले, बच्चा ये 2 ले लो और कोई भी छोटा ले लो और सबसे बड़ा वाला टर्म ले लो, इट इज अप टू यू, वॉट एवर यू आर गोइंग टू टेक। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू डू इट, एंड एज सुन एज आई एम गोइंग टू जस्ट प्रोसीड विद दिस, हमारा आंसर आता चला जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से रीराइट कर देता हूँ, मैंने cos x को इधर लिख लिया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बार, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, दिस इज गोइंग टू गिव मी
टू यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी, मैंने यहाँ पे लिखा cos 2x, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दैट इज cos 4x प्लस 6x प्लस cos 4x माइनस 6x। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, जैसे ही मेरे पास हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू गिव मी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा cos 10x, और फिर से ये क्या हो जाएगा cos 2x, और ये क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2x, एंड cos ऑफ माइनस 2x अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखोगे तो ये मेरे पास cos ऑफ माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी cos स्क्वायर 2x डी एक्स। ऑल राइट, तो ये वाला पार्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ऑल राइट, तो ये वाला आई होप आपको ये सारे कोऑर्डिनेट वगैरह सिस्टम पता होंगे कि हाउ डू वी डू इट। ऑल राइट, तो नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इज, देखो यहाँ पे तो हमारा ये वाली आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड एज 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। याद आ गया कि जब भी साइन और कॉस को ब्रेक डाउन करना होता है तो वी जस्ट यूज दिस आइडेंटिटी, और ये वाले पार्ट को आप दोबारा से इसके अंदर वही लगा दो, वही वाला फॉर्मूला, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दैट, दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, जल्दी से देखो, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया एंड 1/2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा cos 2x प्लस 10x प्लस cos 2x माइनस 10x। ऑल राइट, ये वाली चीज तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई थी, बट प्लस में व्हाट डू वी हैव, प्लस के अंदर 1 प्लस कॉस, जल्दी से बताओ, ये स्क्वायर डबल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। ऑल राइट, एज सुन एज आई हैव दिस थिंग टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ मी, 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x। ऑल राइट, ये चीज आपको आई थिंक समझ आ गई होगी हाउ वी आर गोइंग टू जस्ट फॉलो विद दिस क्लास। आपको जस्ट वीडियो पॉज करनी है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आई थिंक देयर इज some of the thing that you all have to do। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, and the final answer that we are going to have it in front of us is going to be this 1/4 cos 12x का क्या होता है, जल्दी से बता दो, cos 12x का इंटीग्रल क्या होता है, that is going to be sin 12x divided by 12, ये इसको हम बाहर ही ले लेते हैं, एंड प्लस sin 8x divided by 8 प्लस x प्लस sin 4x divided by 4 प्लस सी। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमें थोड़ा सोचना पड़ गया, एंड बाय विच इस क्वेश्चन को अगर आप लोग अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लो तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, कि 1/2 बार बार हम इसके साथ कर रहे हैं यूजिंग अ लॉट ऑफ ब्रैकेट्स हियर एंड देयर। सो बच्चा, यू कैन डू इट इन अ सिंपलर वे, अगर आपको लगातार ऐसे ही करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देर इज नो हार्म इन डूइंग इट। बाय द वे, whenever we are doing it in this way, तो हमारा ना ये explanation बहुत clear लिखता है। I hope this thing is clear to each and every one of you। Let's move to question number 4 and let's see what question number 4 is saying in front of us। Question number 4 मेरे पास कहता है integration of sin cube 2x plus 1 dx। बच्चा, मुझे एक आइडेंटिटी जल्दी से बता दो कि क्या होती है कि जब साइन क्यूब एक्स होता है तो व्हाट डू वी डू, एंड साइन क्यूब एक्स के लिए मैंने एक चीज देखी थी कि सर, जब भी साइन 3a का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, दैट इज गोइंग टू बी साइन 3a, साइन 3a होता है दैट इज गोइंग टू बी 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ऑल राइट, जब ये चीज मेरे पास आई है तो जस्ट इधर उधर आप कर दो, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड इट विल बी इजी इन फ्रंट ऑफ अस। हाउ डू वी डू इट, कि ये वाला यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 3a माइनस 3 साइन a is equal to minus 4 sine cube a। If you remember these formulas, it will be very easy for all of you। अगर याद नहीं है तो आप इसे अलग अप्रोच से भी कर सकते हो, एंड whenever we are doing this integration तो different solutions आना possible है, because your method might be different। all right, तो जब मैं इसको करूंगा माइनस साइन इधर चला जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाय 4। ऑल राइट, बस इस वाले पार्ट को आप इससे इंटरचेंज कर दो, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन ए, क्या है मेरे पास 2x प्लस 1 माइनस साइन
3 multiplied by 2x plus 1 dx. All right, this is going eventually going to give me integral of 3 बार ले लेते हैं, that is going to be 3/4 integration of sine 2x plus 1 minus 1/4 integration of sine, ये कितना हो जाएगा, this is going to be 6x plus 3. ऑल राइट, dx. जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो नाउ इट इज वेरी इजी इन फ्रंट ऑफ अस, दिस इज गोइंग टू गिव मी 3/4. ये होता है माइनस ऑफ कॉस कॉस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/4. क्योंकि माइनस था और साइन का होता है माइनस ऑफ कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस कॉस 6x प्लस 3 और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज गोइंग टू बी 6 प्लस 6. ठीक है, प्लस सी. All right, now the final answer is going to be minus 3/8 cos 2x plus 1 plus 6 fours are 24, and this is going to give us cos 6x plus 3 plus c. All right, अगर ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो you can do it in this way also. Otherwise आप इसको अलग तरीके से सब्स्टिट्यूट करो and it is again very possible in front of you. All right, वो वाला तरीका आप एक बार आप खुद सोच लेना हाउ टू डू इट. उसी सेम तरीके से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ जिस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता था. ऑल राइट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब एक्स डीएक्स. ऑल राइट, जब भी मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो वन थिंग आई हैव इट इन माय माइंड कि किसी भी टर्म को आप टी ले लो और बाकी के बाकी टर्म्स आप दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर लिया कॉस एक्स को ले लिया टी. ऑल राइट, कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. क्लास साइन एक्स तो है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और ये सब है, तो मैं क्या कर देता हूँ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी. क्लास इस वाले पार्ट को दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करता हूँ. एंड हाउ आई एम गोइंग टू जस्ट रीअरेंज इट, लेट्स हैव अ लुक हियर. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. ठीक है, मैंने इसे ब्रेक कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आई जस्ट यूज अनदर पेन सो दैट इट विल नॉट डैमेज दिस आंसर. देखो ये वाला पार्ट हम डायरेक्टली इससे रिप्लेस कर देंगे, ये तो ऑलरेडी टी था ही. और ये वाला कैसे हो सकता है, दिस इज आइडेंटिटी से होता है. आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर. तो दिस इज गोइंग टू बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. ये वाला पार्ट हो जाएगा टी क्यूब और ये हो जाएगा डी टी और माइनस का डी टी यहाँ पे. So as soon as I'm going to just write it, this is going to give me minus integration of t cube minus t की power 5 dt. and just इसको आप सीधा इंटीग्रेट कर दो and this thing is going to give me minus का t की power 4 upon 4 and minus t की power 6 upon 6 plus c. All right, as soon as you are going to just put on the values of t over here, the final answer is going to be, देखो माइनस और माइनस इसको मैं इधर उधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा cos की पावर 6x अपॉन 6 माइनस ऑफ cos की पावर 4x अपॉन व्हाट, जल्दी से बता दो, दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस c. आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू कि बच्चा हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है. एंड बाय यूजिंग दीज अप्रोच इट इज वेरी मच प्रेवलेंट इन फ्रंट ऑफ अस कि करते कैसे हैं इसको. ऑल राइट, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्लास आप एक चीज देख रहे होगे कि पिछले वाली एक्सरसाइजेस में हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था, बट इन दीज एक्सरसाइजेस वी हैव टू जस्ट पुट अप आवर ब्रेन. ऑल राइट, तो इस वाली एक्सरसाइज को आप जितना स्लोली स्लोली करोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू बिकॉज नो रट्टाफिकेशन इज गोइंग टू वर्क हियर. इट इज गोइंग टू बी सिंपली योर ब्रेन विच इज गोइंग टू फंक्शन इन द एग्जामिनेशन. ऑल राइट, तो जल्दी से आगे चलते हैं. दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 6. एंड क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x. इसके अंदर हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है कि इसको हम करें, तो आई एम गोइंग टू यूज वन फॉर्मूला. एंड क्लास प्लीज नोट दैट ऑन द राइट हैंड साइड एवरी टाइम आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला which is going to be used and the same thing is going to be done by you all in the examination.
आई थिंक ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। याद आया, ये लास्ट वाला फॉर्मूला है जिसके अंदर से माइनस कॉमन ले लेते थे बाहर, क्योंकि हमें ये वाला आंसर आता है। तो क्लास इस वाले केस में 1/2 से करो मल्टीप्लाई, 1/2 से कर दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड व्हाट थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव इट इन फ्रंट ऑफ अस कि मैंने एक सबसे छोटे वाला टर्म ले लूंगा, एक बड़े वाला टर्म ले लूंगा, इसी को ब्रेक डाउन कर दूंगा, एंड आई कैन जस्ट यूज सम ऑफ द फॉर्मूलाज विच विल गिव अस द रिजल्ट। ऑल राइट, तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, 1/2 से किया मल्टीप्लाई एंड 1/2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ 2। अगर इसको मैं ध्यान से लिखूं तो कैन आई राइट इट एज साइन 3x साइन x साइन 2x। क्लास इंटरनल शफलिंग यू कैन डू बिकॉज मल्टीप्लाई है, 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, इट मीन्स द सेम। ऑल राइट, तो ये वाला पार्ट जैसे ही मैंने किया तो आई कैन जस्ट पुट अप द फॉर्मूला ऑन दिस पार्ट, एंड इस पार्ट का आंसर मैं लिखता हूँ बाद में, साइन 2x से इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ कॉस, जल्दी से बताओ, दैट इज गोइंग टू बी माइनस कॉस एक्स प्लस वाई and plus cos of x minus y. The answer that we are going to have it in front of us is going to be uh, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 4x, एंड फिर से ये ब्रैकेट में, क्योंकि ये साइन 2x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। ऑल राइट, एज सुन एज वी हैव दिस थिंग, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर से इसे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ये सब कुछ करेंगे, बट इससे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x साइन 2x माइनस cos 4x साइन 2x dx। इसको अगेन आप इसको करोगे, एंड एज सुन एज वी हैव दिस, 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड, तो आई गेट 1/4 बाहर, और ये हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x माइनस 2 कॉस 4x साइन 2x। ऑल राइट, एंड dx ओवर हेयर। तो ये वाली चीज जब मेरे पास होगी, जस्ट पुट ऑन द फॉर्मूलाज, ये वाले में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे और इस वाले में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे पुट अप करनी है। तो द फाइनल आंसर दैट वी आर गोइंग टू हैव इज 1/4, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x माइनस साइन 6x प्लस साइन 2x dx। ऑल राइट, एज सुन एज वी हैव दिस क्लास, बस इसको इंटीग्रेट कर दो एंड वी आर रेडी टू गो। साइन का इंटीग्रेशन पता है माइनस ऑफ कॉस, और उसी के साथ आप उससे कर दोगे डिवाइड। ऑल राइट, तो आंसर दैट वी हैव इट इन फ्रंट ऑफ अस इज 1/4, और इसको आप इसके अंदर लिख लो, दैट इज गोइंग टू माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस ऑफ कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, एंड प्लस सी, एज सुन एज वी आर गोइंग टू जस्ट ब्रेक दिस टर्म, दिस इज गोइंग टू बी 4 4 16, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 4x अपॉन 16, एंड माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 6 4 24, दिस इज गोइंग टू बी कॉस 6x अपॉन 24, एंड यहाँ पे कोई माइनस का टर्म नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1/8 cos 2x plus c। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। हमेशा इसके अंदर से आपको बार बार अब फॉर्मुलेज लगाने पड़ेंगे, एंड आई मस्ट से दैट कि ये वाले फॉर्मुलेज आपने क्वेश्चन नंबर 2 3 में कर लिए होंगे कि अब लगाना कैसे ऐसे, ठीक है। तो वी विल नॉट बी राइटिंग डाउन द सोल्यूशन अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो अगर आप इसके पूरा सोल्यूशन लिखने पे आ गए तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 5 मार्कर क्वेश्चन। आई डोंट नो, बट दिस इज वेरी सिंपल, एंड इसकी कैलकुलेशन तो आप ब्रेन में ही कर लोगे, हाउ डू वी डू इट। ऑल राइट, सो क्लास लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। I'll just write down the question for all of you. This is going to be question number 7. Question number 7 मेरे पास कहता है integration of sin 4x into sin 8x. All right, जब मेरे पास ये वाला integration होता है तो what do we do? मेरे पास 1/2 से सर इसे करो मल्टीप्लाई एंड 1/2 से करो इसे डिवाइड, बट सर उससे पहले इसको कर दो रीअरेंज, बिकॉज जब ये माइनस होगा तो नेगेटिव के आंसर देगा, और वो हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ऑल राइट, तो मैंने इसे 1/2 से किया डिवाइड और 2 से करा मल्टीप्लाई,
तो ये हो जाएगा 2, और साइन 8x को पहले लिख लेता हूँ, एंड साइन 4x को बाद में लिख लेता हूँ। क्लास 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज गोइंग टू बी 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको साइन एक्स वाई लिया है, लेकिन आप साइन ए साइन बी से भी पढ़ते हो बच्चे, किसी किसी भी अल्फाबेट से पढ़ लेते। इट इज नॉट एन इशू फॉर ऑल ऑफ अस। दैट इज गोइंग टू गिव अस कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। या तो अगर आपको रीफॉर्मेट करना है तो ये दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ ए प्लस बी plus cos of a minus b. Whatever you like and whatever is favorable to each and every one of you, you can just apply it. So basically आपको क्या करना है, आप अप्लाई करो इसको फॉर्मूला, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? तो ये हो जाएगा 1/2, एंड ये मेरे पास आ जाएगा cos 4x। दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4x, एंड दोनों को प्लस करूंगा तो आएगा माइनस का 12x, एंड dx इंटीग्रेशन के साइन के साथ। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। ऑल राइट, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस साइन 4x अपॉन 4, और माइनस ऑफ साइन 12x अपॉन ये यहाँ पे रहेगा, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस 12 प्लस सी, एंड यू कैन लीव द आंसर टिल हियर। दिस थिंग इज द सोल्यूशन। अगर आपको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है तो यू व्हाट यू कैन डू इज 1/8 साइन 4x एंड माइनस 1/24 साइन 12x plus c, and this is going to be the final answer for each and every one of you. क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से यूज कर ली, बट अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज आपको इसके अंदर से कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, एंड ये फॉर्मुलेज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए थे। ऑल राइट, फॉर्मूले तो मैंने आपको एक चीज बताया थे, बट लेट्स रिकॉल दीज फॉर्मुलेज सो दैट आपको समझ आ जाए कि रिवर्स प्रोसीजर पे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 8, एंड यहाँ पे स्टार 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 लगा लो, बिकॉज बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ऑल राइट, बट सर आपने ना हमें एक चीज पढ़ाई हुई थी, एंड सर वो वाली चीज ये थी, जब भी साइन स्क्वायर एक्स था तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, एंड जब भी हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स था तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे ये वाला टर्म, क्लास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दे रखा है, तो 2 अगर इस तरफ ले जाओ और इसका भी 2 यहाँ पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे डबल था तो इसका हाफ एंगल यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो आपको ये यूज करना आ चुका होगा। इस वाले को रिप्लेस करो, इस वाले को रिप्लेस करो, एंड वी आर रेडी टू गो विद द आंसर, एंड एवरीथिंग इज सो सिंपल इन फ्रंट ऑफ अस कि अब तो यही लग रहा है कि सर क्या दे दिया अभी तक क्वेश्चन ये सब। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू हैव इट इन फ्रंट ऑफ अस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 cos square x upon 2 dx, and class if I just simplify 2 से 2 कट जाएगा, that is going to be tan square x upon 2। क्लास अब आप जल्दी से मुझे बता दो कि सर जब भी tan स्क्वायर होता है तो उसको किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? याद आ रहा है? ऑल राइट, कि हमने पिछले वाले सारे एक्सरसाइजेस के अंदर जब भी tan स्क्वायर आता था, देयर वाज अ वेरी स्पेशल आइडेंटिटी दैट वी यूज, दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। तो बस ये पुट कर दो एंड वी आर रेडी टू गो विद द आंसर। तो ये वाला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 डी एक्स, एंड वेन एवर वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट, अलग अलग कर दो या तो आप एक साथ भी लिख सकते हो, एंड वी आर हैविंग दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ अस दैट इज गोइंग टू बी tan x अपॉन 2, और इसके डिफरेंशिएशन आप कर दो से डिवाइड, दैट इज 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ x प्लस सी। सो द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ इस, दैट इज गोइंग टू बी 2 tan x अपॉन 2। मैं दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ, 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस सी। क्लास ऐसे वाले क्वेश्चंस ना थोड़ा सा दिल खुश कर देते हैं, जिसके अंदर से ना हमें थोड़ा सा आइडेंटिटी लगानी होती है, और एग्जामिनर भी सोच रहे थे काश ये बच्चों को ना आए। ऑल राइट, बट हम तो उस तरीके के बच्चे हैं जिसने ये सब कुछ पढ़ लिया है। ऑल राइट, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहे हो सर बच्चों की तारीफ कर दी आपने, ठीक है,
बट ऑल दी स्टूडेंट्स, जो जो आप तरीके के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अच्छे, ठीक है, तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पार्ट कि अगले वाले पार्ट में क्या करना है। अगले वाले पार्ट में इट इज अगेन गोइंग टू बी अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी वेरी लाइक कंफ्यूजिंग टू ऑल ऑफ यू कि करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो क्लास इसको एक स्टार दे देंगे क्योंकि इसके अंदर बस हल्का सा एक प्रोसीजर है। अगर आपने इसको सोच लिया तो देन यू आर रेडी टू गो विद द आंसर, अगर नहीं सोचा तो फंसे रह जाओगे और पता नहीं क्या क्या करते रहोगे, इंटीग्रल 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 लगाते लगाते, एंड विल बी थिंकिंग इन अनदर डायरेक्शन, ठीक है। क्लास अगर इसके न्यूमरेटर में आया आंसर, अगर हम इसके न्यूमरेटर के अंदर +1 और -1 करते तो डिनोमिनेटर से कर जाएगा मैच। ऑल राइट, तो क्या करते हैं इसके अंदर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ऑल राइट सर, कैसे किया जल्दी से बता दो। कॉस एक्स तो था ही, +1 और -1 कर दिया यहाँ पे, एंड इन द वेरी नेक्स्ट पार्ट मैं इन दोनों को कर दूंगा सेपरेट। This is going to be dx, the integration of 1 plus cos x divided by 1 plus cos x minus integration of 1 upon 1 plus cos x dx. As soon as I have done this part, तो मेरे पास ना एक अलग प्रोसीजर आ जाएगा। क्लास, डू यू रिमेम्बर द प्रीवियस कंसेप्ट जिसके अंदर से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 था। क्लास दोबारा से देख लो, ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ऑल राइट, तो प्लीज ध्यान से देख लो, एंड वी आर जस्ट रेडी टू गो विद द आंसर, एंड डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि ये कट जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx, एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये 2 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec square x upon 2 dx, and as soon as we are going to find out the solution for this is going to be x minus 1 upon 2, और ये हो जाएगा tan x अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 से डिवाइड, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, दिस बिकम्स x माइनस tan x upon 2 plus c. I hope this thing is very much clear in front of you कि सर करना कैसे था। देखा, इसके लिए एक स्टार हमने इसलिए दिया क्योंकि अगले वाले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने 2 स्टार 3 स्टार इसलिए दे दिए थे क्योंकि इसको भी कन्वर्ट करना था, इसको भी कन्वर्ट करना था, राइट। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होता बाय ऑन योर ओन, ठीक है, तो आपको इस वाले क्वेश्चन को करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट प्रोसीजर इन योर माइंड कि सर इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने करा हुआ है, ऑल राइट, मैंने इस क्वेश्चन को देखा नहीं है इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, बट इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अगर नीचे होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर हमेशा हम कन्वर्ट करते थे टैन स्क्वायर से। एंड सी, एक एक चेन बनी हुई है आपके सामने कि एक एक चेन बनी हुई कि अगर ये किस तरीके से है तो ये कैसे होगा, एंड दिस इज हाउ योर ब्रेन विल फंक्शन व्हेन एवर यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑल राइट, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या कहता है, सर देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 एक्स डी एक्स। ऑल राइट, तो सर साइन की पावर 4x, तो क्या हम इसे साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर। ऑल राइट, जब हम इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स तो मुझे पता ही था, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्लास ये वाले फॉर्मूले ना प्लीज मेरे साथ रिपीट करो, मुझे नहीं पता यहाँ आजू बाजू में कौन है। sin square x is equal to 1 minus cos 2x upon 2। all right, very good everyone, now आगे हम चलते हैं। this is going to give us integration of sin square x का square dx, and मुझे एक चीज पता था कि sin square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2, तो बस इसको इससे रिप्लेस कर दो, that is going to be 1 minus cos 2x divided by 2 का whole square dx, and as soon as we are going to just break this term into another parts, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट तो 1/4 हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर dx। इसको और ब्रेक डाउन कर लो, एंड इसको और ब्रेक डाउन करने के बाद आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x, उसके बाद जल्दी से बताओ -2 cos 2x मल्टीप्लाइड बाय dx। ऑल राइट, ऐसे ही जब मेरे पास आ जाएगा इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करो, अलग अलग इंटीग्रेट करो, एंड अगर आप इसे देख पा रहोगे ये दिस इज cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x हमने निकालना सीखा था, हाउ डू वी डू इट, एंड cos स्क्वायर 2x को करो। अब आई विल बी जस्ट राइटिंग डाउन द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, थोड़ा बहुत बोलूंगा मैं,
so that आप भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो and I am also solving in front of you, so that at last you can just finally match down the answer. So this is going to give me 1 upon 4 integration of 1 dx plus 1 upon 2, मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस इज गोइंग टू बी 1/2, जस्ट राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x/2, मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया, दिस इज गोइंग टू बी dx माइनस 2 बाहर ले लिया cos 2x, एंड दिस इज गोइंग टू बी dx इन फ्रंट ऑफ अस, एंड मुझे पता था cos स्क्वायर x को इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख देते हैं। आफ्टर दैट व्हाट डू आई हैव इज, जब मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूंगा, दिस इज गोइंग टू गिव मी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2, मैंने यहाँ पे ले लिया बाहर इस वाले का, इसको अगेन से मैं दोबारा से करूंगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx। ऑल राइट, जब इसको अलग अलग कर दिया, दिस इज गोइंग टू गिव मी 1/4 एंड दिस इज x प्लस 1/2, एंड ये हो जाएगा x प्लस साइन 4x/4 minus of 2 sin 2x/2, and this is going to be plus c, and इसको थोड़ा सा और अलग अलग ब्रेक कर लो। आई थिंक आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ स्पेस बिकॉज ये वाले क्वेश्चन ना आपकी थोड़ी स्पेस ले लेते हैं। ऑल राइट, तो अगर इस वाले पार्ट को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपके सामने आंसर लिख दूंगा, दैट विल बी फाइन टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, बस एक वाला स्टेप थोड़ा सा मिस करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस 3x/8, ये वाला हो जाएगा 3x/x, x ये वाला यहाँ से ले लोगे और ये वाला यहाँ से ले लोगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी मर्ज्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 4x/32 minus of sin 2x divided by 4 plus c, this is x in front of us। all right, this is how it is going to be solved। यहाँ से 2 कट गया था, यहाँ पे ना ये सब हो गया था, that's why we have these questions in front of us। and इसी तरीके से ये क्वेश्चंस अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ना इन दिस क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव, साइन की पावर 4x dx दे रखा था। जस्ट इमेजिन दैट अगर आपको cos की पावर 4x dx दे रखा होगा तो क्या करोगे। ऑल राइट, तो यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और कन्वर्ट हो जाएगा, एंड आई जस्ट से दैट कि अगला वाला पार्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर ये cos स्क्वायर cos की पावर 4 के फॉर्म में भी है, and इसके आगे 2x दे रखा है। ऑल राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 11, एक और स्टार दे देंगे इसको, ठीक है। this is going to be cos की power 4 2x dx। as soon as I have this thing in front of us, तो सर आपने हमें पिछली बार बताया था, तो this is going to be cos square 2x का भी square dx, एंड सर हमें एक चीज पता थी कि cos square x होता है 1 plus cos 2x/2। ऑल राइट, बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो एंड वी आर रेडी टू गो। तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x/2 का स्क्वायर dx। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ बिकॉज इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमारी थोड़ी स्पेस कम रह गई थी, सो दैट वी कैन जस्ट इजिली फिट इन ऑल द सोल्यूशन। ऑल राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी, मैं 1/2 को बाहर ले लूंगा क्योंकि स्क्वायर था, दिस इज गोइंग टू 1/4, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर dx। अगर 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस कॉस की कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x dx। जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, जस्ट आई विल जस्ट सिंपली सेपरेट दिस टर्म, ये वाला टर्म सेपरेट किया, ये किया और ये किया, एंड आई जस्ट गेट द सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर, ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये है इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx प्लस इंटीग्रेशन के अंदर cos स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ cos 4x एंड dx इसके आगे भी, dx इसके आगे भी, और ये पूरा का पूरा मेरे पास ये था। ऑल राइट, क्योंकि 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई, आई विल नॉट बी टेकिंग इट सेपरेटली सो दैट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। जब सिमिलरली जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो ये वन हो जाएगा 1/4, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और ब्रेक कर दूंगा, एट लास्ट सबके अंदर इंटीग्रल लगा दूंगा, तब तक बाकी सारे टर्म्स को एज इट इज आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट। ऑल राइट एवरीवन, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 8x/2 प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx
और ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 1/4 से। ऑल राइट, जब इसको मैंने लिखा दिस इज गोइंग टू गिव इज 1/4, एंड ये हो जाएगा x प्लस 1/2, ये हो जाएगा x प्लस क्यों, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, प्लस साइन 8x/8, ये वाला पार्ट लाइक दिस, एंड प्लस 2 साइन 4x/4 प्लस सी, और ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाइड था, मैं इस वाले ब्रैकेट से इंडिकेट कर देता हूँ बिकॉज मैंने उसको पहले ऐसे ले लिया था। ऑल राइट, एज सुन एज आई हैव दिस, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4x प्लस x/8 प्लस साइन 8x/, ये देखो 2 × 8 क्या हो जाएगा, और बाकी वाले टर्म ये 8 × 2 और ×4 क्या हो जाएगा मेरे पास, 64 प्लस साइन 4x/8 प्लस सी। और अगर इसको आप थोड़ा सा और इजी फॉर्मेट में लिख दोगे, क्योंकि मेरे को ये दोनों कंबाइन करने हैं, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 3x/8 प्लस साइन 8x/64 प्लस साइन 4x/, what, जल्दी से बता दो मुझे, that is going to be 8 plus c. This thing is going to be the answer for each and every one of you. All right class, जब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाएगा, that is going to be क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वो वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, that is going to be इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x dx। क्लास सर अब तो ना ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा बड़े बड़े हो जा रहे हैं, अब समझ ही नहीं आ रहा है। प्लस प्लीज नोट दैट जो क्वेश्चन बड़े हो जा रहे हैं दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास इजी क्वेश्चंस तो बेसिकली नहीं आने वाले, ऑल द कंसेप्चुअल नॉलेज क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम। ऑल राइट क्लास, साइन स्क्वायर एक्स था और 1 प्लस कॉस एक्स था, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता था, 1 प्लस कॉस एक्स को कैसे लिख सकता था, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, व्हाट टू डू, कौन सा वाला फॉर्मूला पुट करूं। तो क्लास डू यू ऑल नो दैट मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, एंड अगर मेरे को साइन स्क्वायर एक्स को ही करना है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके अंदर मेरी ये वाली 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस cos x, ये वाली चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, सो दैट वी आर जस्ट डायरेक्टली पुटिंग दिस सिस्टम ओवर हेयर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx, एंड इसको आप और ब्रेक कर लो, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस कॉस एक्स 1 plus cos x divided by 1 plus cos x into dx. As soon as I have this thing in front of me, so मैं इसको just simply cut it कर दूंगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus cos x dx। आप इसको डायरेक्टली साथ में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, और यू कैन जस्ट सिंपली बाइफरकेट देम, बाइफरकेट कर देते हैं 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। as soon as I have this, this becomes x, and ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin x प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था बिकॉज इसके अंदर बहुत बेसिक सा स्टेप लग रहा था, और सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के अंदर डिवाइड करेंगे, बच्चा ऐसा करोगे तो थोड़ा फंस सकते हो। All right, the next question that we are going to have it in front of us is going to be yet another important question that we have it in front of us. Question number 13. Question number 13 के अंदर देखो क्या है, integration of cos 2x minus cos 2 alpha डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। सर अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, अब तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो अभी के अभी, एंड धमकी नहीं दे रहा हूँ, बट इफ यू वांटेड टू improve your content knowledge and if you wanted to improve your brain functioning, please pause this video, 5 मिनट 10 मिनट सोचो इस क्वेश्चन को, आफ्टर दैट प्लीज अटेम्प्ट दिस। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी से बता रहा हूँ, बट अगर आपने थोड़ा सा सोच लिया इस क्वेश्चन को हाउ टू डू इट, यू विल बी इजिली एबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल राइट, तो क्लास आई होप आपने सोच लिया है, अब आप मेरे पास आ रहे हो, एंड क्लास ये हो जाएगा अगर मैं इसको, इस वाले पार्ट को cos 2x को अगर मैं थोड़ा सा फ्रेम अप कर दूं, कैसे क्लास, आपको पता था cos 2x क्या था मेरे पास, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। बस इसी तरीके से लिख देना, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x minus cos alpha dx,
एंड हल्का सा इसे थोड़ा सा और ब्रेक कर दूं, दैट इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा -1, एंड दिस गोइंग टू बी +1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। -1 से -1 कट जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन बाहर, दिस इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ऑल ऑफ यू नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, a minus b. All right, every time whenever I am using any kind of a property, you all are noticing that कि सर आप हमेशा ना राइट में लिख देते हो। इट इज वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू सी दैट कि बच्चा प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहा है। एंड क्लास प्लीज मेक श्योर दैट you write these properties on the right hand side because these are very much important to be written। स्टेप मार्क्स होते हैं। ऑल राइट, हर चीज अगर आपने गलती से कुछ भी गलत किया, एग्जामिनेशन कैन सी दैट कि आपने क्या यूज किया हुआ। ठीक है, यहाँ तक के तो एटलीस्ट मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जब मैं इसको करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा cos x plus cos alpha divided by cos x minus cos alpha, एंड ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx, यहाँ पे भी dx, एंड cos का क्या होता है साइन, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन x माइनस 2 साइन अल्फा प्लस c। ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार्क करना चाहते हो तो आप कर लो, बट इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। एज सुन एज यू आर गोइंग टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू आर रेडी टू गो विद द सोल्यूशन। ऑलराइट क्लास, हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज येट अनदर क्वेश्चन एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2x। ऑल राइट सर, 1 प्लस साइन 2x आ गया, 1 भी है, साइन 2x भी है, और cos x माइनस cos अल्फा भी है, तो कुछ थोड़ा अलग सा लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे 1 भी है, 1 को मैं क्या ले सकता हूँ सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 को क्या लिख सकता हूँ, ये आपने जल्दी से पढ़ा होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऑल राइट, अगर ये वाली एक चीज बन जाती है तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस वाई का स्क्वायर। राइट, अगर ये मेरे पास आ गया तो ऊपर भी देख लो कुछ आ रहा है मेरे पास। ऑल राइट, एज सुन एज आई हैव दिस, तो एक डेरिवेबल फॉर्म भी नीचे आ जाता है मेरे पास। तो क्लास लेट्स हैव अ लुक कि ये वाले क्वेश्चन करने कैसे हैं, और इसके अंदर बेसिकली एट लास्ट क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन प्लेस हो जाएगा। बस ने आपको बस हिंट दिया था, if with this hint if you are able to solve this question, do it in front of me, वरना बेटा मैं तो लिख ही रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है just pause the video and just simply solve this question along with me। सो बच्चा, इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 को मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, इस वाले को लिख रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऑल राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। अगर ये वाला पार्ट मैंने किया है, मैंने आपको भी राइट साइड में बताया था कि व्हाट ऑल थिंग्स दैट आई हैव यूज्ड। ऑल राइट, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus sin x divided by, this is going to be sin x plus cos x का होल स्क्वायर dx। ऑल राइट क्लास, डू यू इमेजिन दैट कि हमने एक क्वेश्चन में अंदर किया था, जब हम इसको नीचे वाले को लेट कर लेते थे, लेट अस कंसिडर दैट sin x प्लस cos x को ले लिया यहाँ पे t। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x का होता है माइनस sin x dx इज इक्वल टू डी टी। ये वाला पार्ट हमारे पास ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है, जैसे इसको डी टी से रिप्लेस करो और इसको ऐसा कर दो, दैट इज गोइंग टू बी डी टी अपॉन टी स्क्वायर। एंड एज सुन एज वी हैव दिस, तो क्लास सब्स्टिट्यूशन याद आ गया आपको, राइट। सब्स्टिट्यूशन जब मुझे याद आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी की पावर -2 डी टी, और ये हो जाएगा +1 -1, दैट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, दैट इज गोइंग टू गिव अस -1 अपॉन टी प्लस सी, और 1 अपॉन टी क्या था मेरे पास, -1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
प्लस सी, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलराइट, हमको अब बेसिकली ना यही चीजें फॉलो अप करनी है, एंड इसके बाद हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं बहुत ज्यादा इजी। ऑलराइट क्लास, लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इट ऑन द स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास कहता है इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x into sec 2x dx। as soon as I have this question in front of me, तो बच्चा देखो, tan क्यूब 2x है, sec 2x है, अगर sec को आप डिफरेंशिएट करो तो मेरे पास कुछ टर्म आती है, अगर मैं कुछ और करूँ तो क्या आता है, तो सर कुछ समझ सा नहीं आ रहा है, करना क्या है। ऑल राइट, तो क्लास लेट्स हैव अ लुक। अगर tan क्यूब है तो tan क्यूब भी किसी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, tan स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक कि करते कैसे हैं। अब मैं ना इस वाले को आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को समझ आ चुका है। ऑल राइट, अगर समझ नहीं आया तो जस्ट प्लीज पुट अप योर ब्रेन, बिकॉज इट इज वेरी मच नेसेसरी टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, तो दिस इज गोइंग टू बी, लेट सपोज मैंने sec 2x को ले लिया यहाँ पे t। जब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 2 sec 2x एंड tan 2x dx इज इक्वल टू dt। ऑलराइट, इस वाले पार्ट को मेरे पास, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, लेट अस लीव दिस पार्ट हेयर ओनली। हम थोड़ा सा एक बार हेर फेर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। कैन आई राइट इट एज tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx, यस और नो। मैंने ऐसा कर लिया क्लास। जब मैंने इस वाले पार्ट को लिया t, ऑल राइट, तो समझ नहीं आ रहा सर, कैसे करें आगे, और देख लो क्लास, और थोड़ा सा हेर फेर कर लो कि क्या मैं tan स्क्वायर को किस तरीके से ले सकता था। tan स्क्वायर को मैं क्या ले सकता था, ये हो जाता था sec स्क्वायर x माइनस वन, ये हो जाएगा tan 2x, ये हो जाएगा sec 2x dx। as soon as I have this in front of me, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, दिस पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये dt, और जो चीज मुझे नहीं चाहिए थी वो इसके पास यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस थिंग इज गोइंग टू गिव मी 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर। इस वाले को मैंने ले लिया टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। ऑल राइट, एज सुन एज आई हैव दिस, तो दिस इज 1/t, और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो टी क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ टी प्लस सी, एंड टी मैंने क्या लिया था sec 2x, जस्ट पुट ऑन कर दो वैल्यू, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/2। दिस इज दिल बी sec 2x sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस ऑफ sec 2x। ऑल राइट, प्लस सी। और अगर आपको थोड़ा सा और इसे ब्रेक डाउन करना है तो बस इसको 1/2 जो आपने बाहर ले रखा था, यू जस्ट हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट। ऑल राइट, द आंसर दैट वी आर गोइंग टू हैव इज दैट इज गोइंग टू बी sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 plus c, and this is going to be the final answer in front of you। and as soon as we have this thing in front of us, तो बस हो गया हमारा solution क्लास। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार आने वाला है, एंड हाउ डू वी डू दैट क्वेश्चन, थोड़ा सा हमें इसमें स्पेसिंग भी चाहिए होगा, बिकॉज आई वुड लाइक टू कंसिडर दिस क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने साइन की पावर 4x किया था, कॉस की पावर 4 2x किया था, इस सिमिलरली व्हाट वी आर गोइंग टू डू tan 4x dx करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 16 एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4x dx। as soon as we have this tan की पावर 4x dx, तो ये थोड़ा सा ना इस इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे पास, लेट अस सपोज दैट कि ये मेरे पास एक इंटीग्रल है i। ऑलराइट, अभी थोड़ी देर में आप सोचोगे कि सर आपने ऐसा ही फंक्शन क्यों लिया। आई थिंक मैं थोड़ा सा कैमरा के पास जा रहा था, दैट्स व्हाई थोड़ी सी फ्लैश ज्यादा हो रही है, जस्ट पार्डन मी फॉर दैट। आगे देखते हैं, ठीक है। दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, अगर मैंने आई ले लिया tan की पावर 4x, तो क्या tan की पावर 4x को tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स के अंदर मैं डिवाइड कर सकता हूँ। यस सर, यू कैन डू इट वेरी सिंपली इन फ्रंट ऑफ अस। दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एंड ये मुझे अगली टर्म में देगा tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, लगाना मत भूल जाना, dx dx। एंड एज सुन एज वी हैव दिस, तो इसको दोबारा से कन्वर्ट कर दो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, एंड दिस इज गोइंग टू बी sec स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। एंड एज सुन एज आई जस्ट ब्रेक इट, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो,
एंड इसको सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन दूसरे वाले को नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑल राइट, जैसे ही मैंने इस चीज को किया तो आई गॉट दिस सेक्स स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। जैसे ही मेरे पास ये चीज आ गई, अगेन आई हैव दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज गोइंग टू बी सेक्स स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस, और ये tan स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। ऑल राइट, ये चीज अब रिपीटिशन के फॉर्म पे आ गई, एंड इस रिपीटिशन को थोड़ा सा और फॉर्मुलेट कर देते हैं एंड वी जस्ट राइट इट, एंड देखते हैं कैसे होगा। ऑल राइट, आगे देखो, द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इट इन फ्रंट ऑफ अस इज गोइंग टू बी, आप इसको अलग अलग पार्ट में कर दो एंड लेट्स सी कि इसके साथ करना क्या है। ऑल राइट, तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये वाला इंटीग्रेशन मैंने साथ में लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। ये वाला पार्ट ये आ जाएगा यहाँ पे। ऑल राइट क्लास, लेट अस कंसिडर दिस फंक्शन। ये वाला पूरा पार्ट इसको मैं ले लेता हूँ I1, और ये वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ I2। क्लास, क्योंकि अगर मैं इसके आगे आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर डाउन, तो ये मुझे थोड़ा सा करेगा कंफ्यूजन क्रिएट, एंड I मेरा क्या हो जाएगा I1 माइनस I2, दैट इज गोइंग टू बी दिस I। तो आई हैव दिस I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। ऑल राइट, आई अलग से निकाल लो और ये अलग से निकाल लो, एंड वी कैन जस्ट हैव इट इन फ्रंट ऑफ अस। तो एक बार हम क्या करते हैं कि tan x को ले लेते हैं t, एंड वी जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर डाउन। सबसे पहले करते हैं I1 को सॉल्व। ऑल राइट, एज सुन एज वी हैव दिस I1, तो I2 को हम डायरेक्टली लिख के वी कैन जस्ट सॉल्व इट। I would like to use this right hand side of the screen. I hope I am not disturbing this camera function. कैमरा यहाँ पे साइड में आ रहा होगा, आई नो दैट, थोड़ा सा बच के ही उससे मैं करना चाहूंगा। तो बच्चा, लेट अस पुट दैट कि मैंने यहाँ पे ले लिया tan x को t ले लिया, बाकी चीजों का आप जब डिवाइड करोगे तो I1 वाला फंक्शन मेरे पास किस तरीके से आ जाएगा, आई एम जस्ट यूजिंग दिस ग्रीन कलर का पेन। I1 आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी टी डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर एक्स। ऑल राइट, सेक्स स्क्वायर एक्स से सेक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि t का मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी विच इज इक्वल टू टी की पावर 3/3 प्लस सी वन मैंने एक कांस्टेंट वन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट वन इसका अलग आएगा और I2 का कांस्टेंट वन अलग आएगा। तो देख लेते हैं कि क्या होता है। दैट इज गोइंग टू गिव मी, जस्ट डायरेक्टली पुट अप कर दो, दैट इज गोइंग टू बी tan 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1। ये मेरे पास I1 आ गया। लेट अस कंसिडर व्हाट इज I2। आई टू मेरे पास डायरेक्टली सॉल्व हो ही गया था, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx minus integration of 1 dx, and that is going to give me tan x minus c2। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को माइनस कर देना है, एंड वी हैव द सोल्यूशन। मैं यहाँ लिख दूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 जो हमने यहाँ पे निकाले हैं। एंड क्लास, इसको निकालना आपको पता है कि हाउ डू वी सॉल्व दिस एंड हाउ डू वी सॉल्व दिस। ये वाले क्वेश्चंस हमने पहले करे हुए हैं। जस्ट मैच योर आंसर हाउ डू वी डू इट, एंड इसका पूरा सोल्यूशन आई हैव गिवन इट टू यू। आई एम नॉट स्किपिंग एनी काइंड ऑफ अ सोल्यूशन सो दैट कि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। ऑल राइट, जब हम इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा I, दैट इज I इज इक्वल टू tan की पावर 3x/3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम जस्ट वॉचिंग दिस फ्रॉम हेयर, कि स्क्रीन मेरी आई थिंक बहुत बड़ी है तो मुझे आई थिंक आई मूवमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी tan 3x प्लस C1, and this is going to be minus of tan x minus C2, एंड मेरे पास जो I आ जाएगा फाइनली आ जाएगा tan की पावर 3x/3 माइनस tan x प्लस C। मैंने C का क्या लिया, इस वाले C और इस वाले C को कर दिया कंबाइन, एंड इसको मैंने ले लिया लेट दिस इज गोइंग टू बी C। मैंने क्या किया है, C1 प्लस C2 को ले लिया, यहाँ पे C यहाँ पे मेंशन कर देना, एंड दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो गया। एंड क्लास, अगर एग्जामिनर को आपको थोड़ा सा परेशान करना होगा तो वो ये वाला क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। ऑल राइट क्लास, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा सिंपल मत समझना, बिकॉज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही वाले क्वेश्चन इंटीग्रल में कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास क्या कह रहा है,
क्लास अभी हमें पढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हो चुका है, ऑलराइट। और अगर लोग आप सब अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आई विल नॉट से ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट अगर आप इस वीडियो को लगातार देख रहे हो तो आप बेल आइकन दबा देना, सो दैट आई कैन जस्ट एज सून एज आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ऑन द वीडियो, तो आपके पास डायरेक्टली आ जाए, ऑलराइट। अगला वाला क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x डिवाइडेड बाय sin square x cos square x dx. As soon as I have this in front of me, तो what I am going to do, क्लास इसको ना अलग अलग कर देते हैं, तो मेरे पास ना अलग अलग टर्म्स आ जाएंगी। सर कैसे अलग अलग करना है, मुझे तो समझ नहीं आया, तो हाउ डू वी डू इट। क्लास इसको अलग अलग करने के लिए वी कैन हैव दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। क्लास ये यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, ये यहाँ से ये कट जाएगा, दैट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस एक्स। मैं ध्यान से इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कैसे, cos x इंटू कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, ये cos से cos कट रहा था, यहाँ पे sin नहीं, ऑलराइट। थोड़ा सा रीडू कर लेता हूँ एंड यही वाला मिटाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी sin, cos से cos स्क्वायर कटा गया और ये हो जाएगा sin x इंटू sin x dx। एज सुन एज आई हैव दिस, तो आप इस वाले टर्म को देखोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास tan, और ये हो जाएगा sec, और सिमिलरली ये वाला हो जाएगा cot एंड cosec। तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ tan x into sec x dx plus integration of cot x into cosec x dx। At finally what I'm just going to do is कि इसका जब मैं solution निकालूंगा that is going to be sec x minus cosec x plus c, and this is going to be the answer in front of us. I hope this thing is clear to each and every one of you, and this is how we are going to do all these kind of questions, class। अगली बारी हम जब अगला क्वेश्चन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी सॉल्व बाय यू ऑल, एंड क्लास ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, लेट्स हैव अ लुक कि इस क्वेश्चन के अंदर है क्या। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन हमने एक तरीके से कर रखा है, अगर आप इसकी कंसेप्शन नॉलेज इस क्वेश्चन के अंदर लगाओगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इजी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो वी आर गोइंग टू जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। ऑलराइट, आई डोंट नो क्या हुआ है कि बट दिस ब्राइटनेस ऑफ माय स्क्रीन इज लोअर डाउन, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, बट आई विल नॉट स्टॉप द वीडियो क्योंकि एक सिंगल लोगो में मैं टेक करना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x dx। As soon as I have this question in front of me, तो क्लास cos 2x को किस तरीके से लिख सकते थे और 2 sin square को कैसे लिख सकते थे, ये देखो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो cos 2x है, cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 sin square x। याद आया सेकेंड थर्ड फॉर्मूला, जहाँ पे sin 2x कराया था, फिर उसके बाद ये लिखा था 2 cos square x माइनस 1, एंड इस तरीके से राइट साइड में एक्सप्लेन किया था कि क्या आइडेंटिटी होती है। क्लास हमेशा ना माइंड मैप बना के चला करो इन योर माइंड, सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर। ऑलराइट, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ। यही वाली चीज लेके चलते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो इस वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास, बेटा देखो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, एंड विच इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है क्लास, याद करो हमेशा tan को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सिमिलरली उसी वाले क्वेश्चन को मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, बिकॉज जब भी ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो यू विल से सर आपने हमेशा बार बार हमें याद दिलाया कि tan स्क्वायर एक्स को हम हमेशा इसमें कन्वर्ट करते हैं टू सॉल्व इट फर्दर डाउन। ऑलराइट, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x plus c, that is going to be the answer in front of us। all right class, next वाले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, that is going to be question number 19। क्लास दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 19, एंड क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स
dx। ऑल राइट, जैसे ही मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे ना इसे किसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड क्लास, लेट्स सी द फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ अस कि वो कैसा फॉर्मेट है टू जस्ट सिंपली सॉल्व दिस थिंग फर्दर डाउन। ऑल राइट, अभी हमें करते हुए क्लास क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, दिट इज़ 1 आवर एंड 9-10 मिनट्स हुए होंगे, बट इस तरीके के चैप्टर के लिए इतना समय लगना इज़ वेरी नॉर्मल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? क्योंकि हम इस क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग क्वालिटी क्वेश्चंस एंड बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ऑल राइट, तो क्लास, कैन आई से दैट कि मैं कॉस क्यूब को पहले cos x और cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कुछ और आ जाएगा। कैन आई से दैट, आई जस्ट यूज अनदर रिंग, कैन आई से दैट जब मैंने cos x से डिवाइड किया, दिस इज गोइंग टू बी cos x, दिस इज गोइंग टू बी sin x, और ये हो जाएगा cos की पावर 4x एंड dx। जब cos की पावर 4x को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो व्हाट डू आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी? क्लास जल्दी से बता दो, व्हाट डू वी डू हियर? ऑल राइट क्लास, जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो व्हाट डू वी हैव? जब हमने इस क्वेश्चन को किया तो दिस इज गोइंग टू गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x dx। अब बता देना ये सर कैसे आ गया आपके पास, ठीक है? तो बस मुझे यही चीज जाननी थी कि सर आपकी ये वाला ये क्वेश्चन कैसे लेके आए हो। ऑल राइट, तो क्लास, दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ वन वन प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x, एंड ये हो जाएगा dx। क्योंकि मुझे पता था जो sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। सर आप सारी प्रॉपर्टीज राइट साइड में लिख दो, क्या हमें भी एग्जामिनेशन में लिखनी पड़ेगी? यस, यू हैव टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन एज वेल। इसके अंदर से आप tan x को ले लो t, तो sec स्क्वायर x हमारे पास मिल जाएगा। लेट अस कंसिडर दैट tan x को भी t ले लेते हैं, तो मेरे पास आता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। sec स्क्वायर x ऑलरेडी प्रेजेंट था, dx और dt भी प्रेजेंट था मेरे पास। तो व्हाट डू आई हैव? इसको जस्ट सिंपली रिप्लेस करना है, तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाएगा, वेयर मेरा जो इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t dt। एज सुन एज आई हैव दिस इन फ्रंट ऑफ मी, एंड बस इसको इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा dt। एंड जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ जाएगा log ऑफ t प्लस t² अपॉन 2, और जो भी मैंने t की वैल्यू ली थी उस पे आप सीधा tan पुट कर दो, दैट इज गोइंग टू बी log ऑफ tan x प्लस tan x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ऑल राइट, दिस थिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर सपोज टू बी डन। और बहुत मजा आ रहा है इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए। और जब 1 घंटे के ऊपर हो जाता है ना क्लास, व्हाट डू आई हैव? मेरे पास ना एक सैंड टाइमर है, अगर आप इसे देख पा रहे होगे तो सैंड टाइमर में इसको ना फ्लिप कर देता हूँ, और इस टाइमर के रुकने से पहले आई डू नॉट गेट अप फ्रॉम माई चेयर। एंड देख लो ये चल रहा होगा अभी भी, ठीक है? बहुत धीरे धीरे चल रहा है। एंड दिस इज अ 60 मिनट्स आर ग्लास। एंड बस ऐसी कोई भी एक चीज मोटिवेशन के लेके बैठो, फोन वगैरह को कर दो साइड वेन एवर यू आर स्टडिंग। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास कुछ इस तरीके से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 सेइंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय cos x plus sin x का whole square dx। ऑल राइट, वेन एवर वी आर ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो क्लास, जो cos 2x था, कैन आई राइट इट एज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x? ऑल राइट, जब मेरे पास ऐसा होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर काट सकूंगा मैं, ठीक है? क्लास, द वेरी बेसिक अप्रोच टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, मुझे बस इस तरीके के लिंक्स फाइंड आउट करने हैं कि हाउ डू वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस लाइक। ऑल राइट, तो क्लास मैं आपके लिए बस एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि विच फॉर्मूला दैट आई हैव यूज्ड, दैट इज गोइंग टू बी cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पे देखो 2x था, दैट्स वाई हमें इसे x और x की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा कि सर विच फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इट ओवर हेयर। ऑल राइट, तो क्लास, एज सुन एज वी हैव दिस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। प्लस इस वाले के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। एज सुन एज वी हैव दिस, तो इस दोनों को ब्रेक डाउन कर दो, एंड बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज गोइंग टू बी cos x माइनस cos cos x माइनस साइन x
इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला टर्म कट जाएगा। एंड क्लास आपके पास अगेन वही पुराने वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हमने सॉल्व किए हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। इस वाले टर्म में आप क्या कर दोगे, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को ले लो t। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। आप इसको वहां से रिप्लेस करो, दैट इज गोइंग टू गिव यू dt अपॉन t, और ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस c। और t को आप रिप्लेस कर दो, दैट इज गोइंग टू गिव यू log के अंदर, मॉड के अंदर cos x प्लस साइन x प्लस सी। ठीक है क्लास, एज सुन एज वी आर एबल टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देखो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हमारे पास आई थिंक 2-3 क्वेश्चन ही बचे होंगे, तो स्टे ट्यून्ड, अभी हटना नहीं है, बिकॉज एज सुन एज वी हैव दी सीटिंग आवर्स, ठीक है, तो हमारे पास ना एक तरीके का एक इम्पल्स क्रिएट हो जाता है कि सर अब ये वाला एक्सरसाइज करके ही हटना है। ऑलराइट, इसके बाद अपने आप को जस्ट गिव अ ट्रीट। ट्रीट कैन बी लाइक वेरी गुड, जैसे आप एक चॉकलेट खा लो या फिर डेयरी मिल्क खा लो या फिर थोड़ा बाहर एक राउंड मार के आ जाओ, बट वेन एवर यू आर स्टडिंग प्लीज डू नॉट ट्राई टू फोकस ऑन योर मोबाइल फोन, बिकॉज मोबाइल फोन चलाओगे 15 मिनट, जब हो जाएगा 2 घंटा पता नहीं चलेगा। ऑल राइट, आई नो दैट वॉट यू ऑल डू, बट करके देखते हैं। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 21, that is going to be integration of sine inverse cos x, अच्छे से नहीं लिखा, this is going to be sine inverse cos x dx। ठीक है क्लास, वहां पे साइन इनवर्स है, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हम कर रहे थे, तो अंदर वाले टर्म को अगर दोनों को सेम कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है। ऑलराइट, तो क्लास देख लेते हैं करके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको डायरेक्टली ही बता दूंगा, दैट इज π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos x dx। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। एंड बिकॉज मेरे पास पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, जब मेरे पास जो x होता है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ऑलराइट, तो ये वाली आइडेंटिटी आपको आई थिंक पता होगी, दैट्स वाई मैंने इसको इस वाली चीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट क्लास, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx, दैट इज गोइंग टू गिव अस π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ऑलराइट क्लास, अब तो बहुत मजा आया होगा बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। क्लास, एक क्वेश्चन आता है मेरे पास जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच्चों को ना ट्रबल करता है। लेट अस सी व्हाट इज दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एंड इस वाले में तो मैं 2-3 स्टार मार ही दूंगा, जस्ट बिकॉज कि इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सोचना पड़ता है, थिंकिंग प्रोसीजर इज इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू dx। क्लास, जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ऊपर था 1, नीचे पता नहीं क्या था। तो इस वाले प्रोसीजर को आप एक बार सोच लो, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन आपको तब आएंगे वेन एवर यू आर डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, तो आपको अगला वाला स्टेप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो व्हाट डू वी हैव टू डू, अगर आप साइन बी माइनस ए लिख दोगे, ठीक है, जस्ट इमेजिन दैट साइन बी माइनस ए, तो आपको उसे किसी टर्म में ब्रेक डाउन करना है, सो दैट मेरे पास न्यूमरेटर कुछ और आ जाए, और वही साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला लगा देना, एंड वी आर जस्ट रेडी टू गो। ठीक है, आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, इंटीग्रेशन के अंदर कैन यू से दैट कि सर यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय, अभी बताता हूँ कैसा किया हमने। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय cos of x minus a cos of x minus b। क्लास, दिस इज गोइंग टू बी dx। देखो, मेरा मेन एम था x माइनस ए और x माइनस बी के बीच में कन्वर्ट करना, b माइनस ए इसलिए लिखते हैं क्योंकि मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर x इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे मैंने x इन्वॉल्व कर दिया है क्योंकि यहाँ पे आई कैन जस्ट पुट ऑन द प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, एज सून एज वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस विद द क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा दैट यहाँ पे वी हैव टू यूज वन प्रॉपर्टी। आई जस्ट राइट इट विद द ग्रीन बिकॉज येलो बहुत ज्यादा यूज हो गया। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि येलो इंक खत्म हो रही है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा फॉर ऑल ऑफ यू। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला जल्दी से बता दो। ठीक है क्लास, आपने सबसे पहले सर आपने पहले एक्स वाई के फॉर्म में लिखा, फिर आपने हमें ए बी के फॉर्म में बताया, फिर सी और डी के फॉर्म में बता रहे हो। बिकॉज आई नो दैट यू आर इन ग्रेड 12th एंड आप सबने ना अलग अलग तरीके से पढ़ा हुआ है। वॉट एवर थिंग इज कंफर्टेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यू कैन जस्ट अप्लाई इट। ऑल राइट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी। ठीक है, इनको सी डी फॉर्मूला कहते हैं, एंड जस्ट पुट ऑन दी सी डी फॉर्मूलाज एंड सी डी फॉर्मूलाज हो जाएंगे। ऑल राइट, so दिस इज गोइंग टू गिव मी 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ, ये ऊपर वाले पार्ट को मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, एंड इसी को इससे डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय, अगेन इसी टर्म से डिवाइड हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और ये पूरा का पूरा dx। एज सुन एज आई हैव दिस, तो क्लास ये देखो ये क्या बन जा रहा है मेरे पास, cos से ये वाला कट जा रहा है और इस वाले से ये वाला कट जा रहा है, तो व्हाट इज लेफ्ट। क्लास अब मजा आ रहा होगा, देखो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा हावी सा लग रहा था, बट कितना इजीली सॉर्ट डाउन हो गया। दैट इज गोइंग टू बी tan ऑफ एक्स माइनस ए माइनस ऑफ tan ऑफ एक्स माइनस बी, एंड इसका पूरा का पूरा dx, दैट इज गोइंग टू गिव अस 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स माइनस ए माइनस tan ऑफ एक्स माइनस बी। क्या मैंने ये चीज़ दोबारा लिख दी है? ऑलराइट, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आई विल नॉट इरेज इट, थोड़ी सी मेहनत तो लगी है। अच्छा ठीक है, मेरे को एक वैसे बटन दबानी है, इट विल बी इरेज्ड, बट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्या हो जाता है क्लास, आपको पता है लॉग, लॉग के अंदर डिफरेंशिएशन। क्लास अगर आपने मेरी सारी की सारी फॉर्मूले वाली एक वीडियो नहीं देख रखी, प्लीज डू गो देयर, एंड उस वाले क्वेश्चन के अंदर आई जस्ट राइट इट हेयर, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर मैं ऊपर एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन गो देयर, एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो यू कैन ऑल्सो गो देयर, एंड पूरे के पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की आप फॉर्मुलेज देख लेना। जब हम करते हैं tan x का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाए माइनस cos x प्लस सी। ऑल राइट, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। ऑल राइट, तो जब ये वाला पार्ट कर लिया मैंने, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी, और लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, जब प्लस माइनस के फॉर्म में होते हैं तो डिवाइडेड के फॉर्म में हो जाता है। दैट इज गोइंग टू गिव मी 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड के अंदर कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। क्लास अब हमारे पास ना बस दो ही क्वेश्चन रह गए हैं जो एमसीक्यू के फॉर्म में है इन योर नोट, इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज एनसीईआरटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। एमसीक्यू आप मैच कर लेना, आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व these questions। ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू गिव अस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लास आई हैव जस्ट नाउ रिमेम्बर्ड दैट कि वी हैव डन वन क्वेश्चन जिसके अंदर से कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स के फॉर्म में था, फिर हमने उसे अलग अलग सेपरेट किया एंड अलग अलग हमने उसे इंटीग्रेट कर लिया। सिमिलरली दिस थिंग इज गोइंग टू फंक्शन इट ओवर हियर, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज कि जब मैंने इस क्वेश्चन को किया, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos square x minus integration, this is going to be dx, and this is going to give me what, this is going to give me cos square x divided by sin square x cos square x dx, एंड जब इसको करूंगा तो ये दोनों कैंसिल, इसको करूंगा तो ये दोनों कैंसिल, दिस इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos square dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin square x dx, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos sec स्क्वायर x dx, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर, दिस इज गोइंग टू गिव मी tan x प्लस cot x प्लस c। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया बहुत इजीली। एंड क्लास द फाइनल क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू हैव इट इन फ्रंट ऑफ अस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है सर, देख लो ध्यान से एक बार।
that is going to be integration of e की power x 1 plus x divided by cos square e की power x into x dx। बोला ये किसके बराबर होगा? क्लास सबसे पहले ना ये जो एक अननोन सी टर्म जो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रही है, इसी को एक बार टी लेके कर लेते हैं तो सर कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो क्लास इसी को टी ले लो। लेट्स हैव अ लुक दैट व्हिच पार्ट इज गोइंग टू बी this thing is going to give us, then let us consider that x into e की power x is equal to t। जब आप इसको करते हो तो ये हो जाएगा x e की power x plus e की power x अलग से dx is equal to dt। क्लास अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, दिस इज गोइंग टू बी द सेम पार्ट, तो ये वाला पूरा dt के साथ ये हो जाएगा 1 upon cos square t, that is going to be integration of dt divided by cos square t, एंड cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट, दैट इज गोइंग टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t dt, एंड sec स्क्वायर t क्या होता है? tan t, दैट इज गोइंग टू बी tan t प्लस c, और t को सीधा रिप्लेस कर दो, दैट इज गोइंग टू गिव मी tan x into e की power x plus c, and here we go class। all right, and this is the correct answer। बच्चा now what you all are going to do is आप पूरे के पूरे एक्सरसाइजेस को एक बार सॉल्व कर लो। अगर आपने 2x की स्पीड पे रन करके गया, दैट इज नॉट एन इशू। अब just take a pen and a paper, do it, solve it each and every question, and उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो you will be having a extra beneficial thing that is going to help you in the further exercises। all right, अगली वाली एक्सरसाइजेस से भी बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस हो जाएगी, जस्ट बिकॉज यू जस्ट हैव टू पुट अप योर ब्रेन ओवर देयर। ऑलराइट, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर से सारे इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हैं, जस्ट डू वॉच दैट वीडियो, and by the time please stay happy and do practice, and always stay in a good hand। all right, thank you so much everyone, have a nice day, bye bye।